Okay, so today we are going to learn our next poem, that is Dover Beach, which is written by Matthew Arnold. Okay, so before going to discuss the poem Dover Beach, we are going to discuss about some biography of Matthew Arnold. Okay, so let us see some biographical details of Matthew Arnold. He is also a Victorian poet. Okay, Victorian poet. He was a critic. Critic means, what do you mean by criticism? क्रिटिसिज्म. हाँ, उसकी मीनिंग क्या है? केवल बुराई करना, केवल अच्छाई बताना, या दोनों बताना, क्या है? या क्रिटिसिज्म मीन्स टू एनालाइज द थिंग्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ओके, आप केवल क्रिटिसिज्म का नहीं मतलब है कि केवल बुराई बताएं किसी का, लेकिन इन जनरल लोग यही करते हैं. ठीक है, क्रिटिसाइज करने का मतलब केवल बुराई बताने से, ऐसा नहीं है. इट्स नॉट लाइक दैट. ओके, इन लिटरेचर देयर इज अ ह्यूज field of criticism. Okay, when you will go to PG classes, you will find criticism. One paper is there, criticism, and so many criticism are there, starting from historical, then in modern criticism like formalism, then new criticism, historicism, feminism, Marxism, psychoanalysis, archetypal, eco-criticism. मतलब so many travel theory. Means there are many criticism is there. So he started criticism of literature first. Okay, he started criticism of literature initially. Before him, literature was not being criticized, and according to him, criticism of literature is criticism of life. According to him, criticism of literature is criticism of life. He means to say that if you are going to criticize the literary text, it means we are going to criticize the human life, because we believe that whatever human thoughts can perceive, that are being reflected into literature. Okay, so in books you find all the things. That's why we also say in our junior classes one essay named like साहित्य ही समाज का दर्पण है. सुना होगा आप लोगों ने कि साहित्य ही समाज का दर्पण है. मीन्स लिटरेचर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी. ओके, लिटरेचर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी. सो इट मीन्स इफ यू आर गोइंग टू क्रिटिसाइज लिटरेचर, इट मीन्स यू आर गोइंग टू क्रिटिसाइज ह्यूमन लाइफ. व्हाई इट इज नीडेड? बिकॉज if something is written in literature, that must be analyzed, because analysis gives you the proper reasoning to value, to make its worth, or to reject it. Whether you have to follow that one, or we have to reject or not accept that one. So that comes from criticism. Okay, in later classes we will go in deep, especially in PG classes, not in graduation. Okay, so he is a critic also. He was a socialist because he wrote many books on social disorders and social orders. You can say one book is there very famous, that is Culture and Anarchy. Okay, Culture and Anarchy. That book is written on the chaos in the society, means the disorderliness of the society which were prevailing in Europe. So based on that, he wrote one book that is called as Culture and Anarchy. So he is also called as socialist. Okay, means he was a social critic also. Apart from being poet, he wrote criticism, and he wrote he was as a professor of English, okay, at Oxford University. Means he was a teacher. Okay, and most important, he was also suffering from the same phenomena of Victorian conflict. In the last class I had discussed about Victorian conflict. Okay, he was also suffering from Victorian conflict.
So what is Victorian conflict? Victorian conflict, in the last class I had discussed. क्या चीज? नहीं, साइंस और रिलीजन के बारे में, साइंस और रिलीजन दोनों में एक टकराव हो गया, ठीक है। लोग रिजेक्ट करने लगे रिलीजियस चीजों को। सो द रिस्पेक्ट और द वैल्यू ऑफ चर्चेस स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। मतलब जो चर्चेस की वैल्यू थी, चर्च का मतलब है जो रिलीजियस चीजें हैं, ठीक, उनकी वैल्यू घटने लगी और साइंस को प्रमोशन मिलने लगा, मतलब लोग साइंस को ज्यादा मानने लगे। तो इन दोनों को लेकर के टकराव होने लगा, क्योंकि पहले पावर चर्चेस के हाथ में होती थी, चर्चेस के हिसाब से पूरी समाज चल रहा था। अब वो धीरे धीरे साइंस की तरफ बढ़ने लगे लोग, तो उनकी बातों को रिजेक्ट करने लगे, बिकॉज देयर आर मेनी रीजंस। वन ऑफ द रीजन इज दैट लॉस ऑफ मोरालिटी और करप्शन इन द चर्चेस, ठीक है, लॉस ऑफ मोरालिटी, कि बहुत ज्यादा मोरालिटी का लॉस हो रहा था उसमें, और इस वजह से लोगों का फेथ चर्चेस पे कम होता चला गया। एंड साइंस is based on the logic and reason. Science is not simply saying anything that you have to just follow this one, because it gives you, so yeah, it gives you proofs. Okay, without validation, it does not tell you to follow. Once it tells there is a gravitational force, if science proves it also, it does not tell you simply that just follow it. But religion is not like that. So there was a conflict, great conflict in Europe. That conflict is known as Victorian conflict. Okay. So major characteristics of his works are like, he was a realist, or you can say realism. Realism means taking the issues of common man. Okay, it is not for the elite class or of very high intellectual person. So the problems or the issues of common man are being discussed in a real way, not in a fictional or imaginary way. Okay, मतलब इनके जो इश्यूज थे बहुत ही रियल तरीके से इशू डिस्कस किए गए, न कि बहुत बढ़ा चढ़ा कर फिक्शनलाइज करके, ऐसा नहीं था, ठीक है। जैसे इनको रिलीजियस फेथ यहाँ पे इनका लॉस लग रहा था, प्रॉब्लम फील हो रही थी इनको, उसमें उन्होंने पोएम लिखा है, जो डोवर बीच पोएम है वो आपका इसी पर है, ठीक है, लॉस ऑफ फेथ, लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ बेसिकली, तो उस पर लिखा हुआ है पूरा पोएम, डोवर बीच। हम लोग पोएम देखेंगे तो और समझ लेंगे। सो रियलिज्म इज मेजर पॉइंट इन हिज वर्क्स। ओके, देन ही टॉक्ड अबाउट पेसिमिज्म। पेसिमिज्म मीन्स, पेसिमिज्म निराशावाद, ठीक है, निराशा मीन्स because of loss of faith in religion, people were confused and they were feeling depressed themselves. So that theme is also being discussed in his poems. That theme means pessimism is like a theme, it is being discussed in his poem. So pessimism is also one characteristic of his poems. Okay, then impact of science and technology. Impact of science and technology. Okay, impact of science and technology, because during Victorian era so many inventions has been done, and one more important issue was discussed here by Richard Darwin. Okay, you must have heard one book, that is Origin of Species. Origin of Species सुना नहीं? जीवों की उत्पत्ति का सिद्धांत सुना होगा, हाई स्कूल में था ये, ठीक, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। दिस बुक वाज पब्लिश्ड इन 1859। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू में पक्का आएगा। हु हैज रिटन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज? ओके, तो चार्ल्स डार्विन है नाम इनका, सॉरी, ठीक है, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन नाम आएगा, और ईयर क्या है पब्लिकेशन का? 1859। ये पक्का आएगा एमसीक्यू में, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। चार्ल्स डार्विन, डार्विन लिखा रहेगा केवल, ठीक है, डार्विन, डार्विन। एक्चुअल में उसने ये प्रूफ किया कि जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई,
ठीक है, उसमें बहुत सारे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल, ऐसे तमाम बहुत सारी थ्योरीज हैं। अगर एक लाइन में उसका ये कहा जाए, उसका जो सार है कहने का, उसने कहा कि जो लिविंग थिंग्स हैं ये सेल्स से बनी है। सेल समझते हैं, कोशिकाओं से। ठीक है, आजकल तो मोबाइल को भी सेल कहते हैं, ये वाले सेल नहीं। अगर बायोलॉजी पढ़े होंगे तो सेल कहा जाएगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर लिविंग थिंग इज सेल। ओके, फिर एक सेल के अंदर बहुत कुछ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, तमाम चीजें होती हैं। ठीक है, उसका कहना था कि जो भी लिविंग थिंग्स बनाई हैं, यानी जो भी सजीव है, चाहे ह्यूमन बीइंग हो चाहे एनिमल से कोई भी है, दीज ऑल आर मेड ऑफ सेल्स। इफ यू हैव वन सेल, ओके, वी कैन क्रिएट एनी काइंड ऑफ क्रिएचर, लिविंग क्रिएचर। अगर हमको एक सेल मिल जाएगा तो हम उस सेल से बहुत सारे बना सकते हैं। ठीक है, ये उसने प्रूव किया उसने, और इस बात को उसने डिमीन किया कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं ये मतलब गॉडली मेड नहीं है, ईश्वर द्वारा डायरेक्ट नहीं बनाए गए हैं, कुछ ऐसा नहीं। उसका ये मानना था, उसने रिजेक्ट कर दिया, जो रिलीजन मानता है। तो इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा लोगों में कंफ्यूजन हुआ, और ये कंफ्यूजन पूरे यूरोप में, चूंकि यूरोप में ज्यादा साइंटिफिक नॉलेज बढ़ता जा रहा था, तो लोग धीरे धीरे इसको सोचना शुरू किए, और इसमें बहुत एक कियास पैदा हो गया वहां पे। मतलब पूरे सोसाइटी में डिसऑर्डरलीनेस आ गया कि मतलब हम क्या करें। कल तक हम मान रहे थे जो है रिलीजन को, आज जो है रिलीजन लग रहा है कि नहीं मानने लायक हो रहा है, तो क्या करें। एक बहुत आम सा सवाल है कि मतलब हर किसी के मन में आएगा कि फिर क्या करें। चलो अगर हम उसको ना भी माने तो फिर क्या माने, ये भी तो एक क्वेश्चन आएगा कि फिर क्या माने या फिर क्या करें आगे। ये जो एक कंफ्यूजन की स्थिति थी, ठीक है। सो इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाज आल्सो अ सब्जेक्ट थीम इन हिज राइटिंग्स। ओके, देन कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ओके, लॉस ऑफ फेथ, लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ, this is also one theme. Not only basically why it is there, when he was born his father was a Protestant. Okay, he was Protestant, means his father was Protestant, but when he grew he came into contact of high church people, high church member, basically you can say John Keppel. Okay, John Keppel एक नाम है, KEBBLE, केबल। वो उनके रिलीजियस गुरु हो गए, ठीक, रिलीजियस प्रीचर और गुरु हो गए, जो कि कैथोलिक्स थे। ठीक, उन्होंने जॉन केबल और जॉन न्यूमैन, ये लोगों ने मिलकर के, और एक एडवर्ड पूसी थे, सारे लोग मिलकर के एक मूवमेंट चलाया ऑक्सफोर्ड में। जब ये ऑक्सफोर्ड पढ़ने चले गए, तब हम डिस्कस कर लेंगे बायोलॉजी में, जब इनकी बायोग्राफी करेंगे तो इन्होंने एक मूवमेंट चलाया जिनका उद्देश्य था कि जो हमारा क्रिश्चियनिटी की ओल्डर ट्रेडिशंस और रिलीजियस फेथ है उसी को रिस्टोर करना है। मतलब जो यहाँ पे लॉस जा रहा है, लोगों का रिलीजियस लॉस हो रहा है, रिलीजियस फेथ में लॉस हो रहा है लोगों का, ये चीज हमें वापस ले आनी है, वैसे ही फेथ बनानी है क्रिश्चियनिटी की जो जैसे पहले थी। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो लास्ट क्लासेज में हमने डिस्कस किया था किसी चैप्टर में, चेन ऑफ बीइंग एक टर्म आया था, चेन ऑफ बीइंग। ओके, आई थिंक एशियन मैन जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे आपको। उसने एक ऑर्डर बताया गया कि जो क्रिश्चियनिटी मानती है कि वी आर इन ए चेन, मतलब हम जो इस दुनिया में हैं सारे लोग एक चेन में हैं। वो चेन का ऑर्डर क्या था? सबसे पहले गॉड, फिर एंजल, ठीक, ह्यूमन, ठीक है, इसके बाद एनिमल, फिर प्लांट, फिर स्मॉल क्रिएचर्स, फिर नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब ये कहने का है ये एक हायरार्की है और हमें इसको डिस्टर्ब नहीं करनी है। और यहाँ पे जो साइंस क्या कर रहा है, सीधे इसी को चैलेंज कर रहा है। ठीक, यानी ह्यूमन नॉलेज है जो ये इसको सीधे चैलेंज कर रहा है। तो सो दिस ऑर्डर इज बीइंग डिस्टर्ब। तो इस ऑर्डर को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट चला था और ये बहुत से इम्प्रेस्ड थे, स्पेशली जॉन न्यूमैन से, जो कि इनके गुरु टाइप थे, जॉन केबल न्यूमैन। और उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि इनकी क्रिश्चियनिटी में फेथ बहुत ज्यादा बढ़ी। ठीक, लेकिन जब ये धीरे धीरे बड़ा हुए, इन हिज यूथ ही अबैंडन्ड दैट वन, मतलब उसको छोड़ दिए, एंड ही बिकेम एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब होता है, एक होता है नास्तिक, एक होता है आस्तिक। ठीक है, थिस्ट और एथिस्ट, और एक होता है बीच का दोनों, उसको कहते हैं एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब है कि कई बार लगेगा कि हाँ ईश्वर नहीं है,
फिर कुछ दुख दर्द आएगा, कुछ ऐसी आफत आ गई तो कुछ देर के लिए लगेगा नहीं यार कुछ तो है, वो शायद ईश्वर ही हो। तो जब ऐसे ऐसे आदमी के विचार मतलब हिलते रहता है, कभी उसको लगता है कि है और कभी लगता है कि नहीं है, ठीक है, तो ऐसे लोगों को कहते हैं एग्नोस्टिक। ही बिकेम एग्नोस्टिक, ठीक है। अब जो सोचो कि शुरू से बहुत ज्यादा रिलीजियस फेथ रख रहा हो, अब अचानक छोड़ रहा हो, तो उसके दिमाग का अंदर को सोचो साइकोलॉजिकली कितना उथल पुथल हो रहा होगा, ठीक है। उसी पोएम को पूरा डिस्क्राइब किया गया है डोवरविच में। सो यू कैन सी वन मोर हियर, लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ यहाँ पर है। इनकी जो एक थीम है, ये भी इनकी बुक्स में पाई जाती हैं, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ हिज बुक इज दैट इज स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म, ओके। स्केप्टिसिज्म क्या होता है? स्केप्टिक का मतलब क्या होता है समझते हैं? जैसे मैं आपको कुछ बता रहा हूं लेकिन आप उसको सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, भाई सुनेंगे, जज करेंगे, तब तो पता चलेगा कि सही है कि गलत है, ठीक। तो इनके साथ ये प्रॉब्लम हो गई। अब साइंस अपनी सुना रहा था, लेकिन ये शुरू से रिलीजियस सुनकर आए थे, तो साइंस को सुनना ही नहीं चाह रहे थे। ही वॉज वेरी स्केप्टिकल। यही नहीं, मतलब ये इन्होंने अपने को लेकर के, या इन्होंने जो पोएम में दिखाने की कोशिश की है कि इट इज नॉट ओनली ए प्रॉब्लम ऑफ ए सिंगल मैन लाइक हिम, इट वॉज ए प्रॉब्लम फॉर मेनी इन द सोसाइटी। सो स्केप्टिसिज्म वॉज ऑल्सो थीम ऑफ हिज पोएम्स, ठीक है। स्केप्टिसिज्म का मतलब है कि किसी चीज को सुनना ही नहीं है, सीधे आंख कान नाक सब बंद कर लिया, ठीक है, कि जो मैं मान रहा हूं वही सही है, अगले की सुनने ही नहीं है। ये स्केप्टिकल थ्योरी होती है, स्केप्टिसिज्म कहते हैं इसको। सो स्केप्टिसिज्म इज आल्सो वन थीम ऑफ हिज वर्क्स, ओके। स्केप्टिसिज्म क्लियर हो गया? देन वन मोर थीम ऑफ हिज वर्क्स इज आइसोलेशन। ठीक, आइसोलेशन हिंदी में कहेंगे इसको अकेलापन, ओके। अकेलापन, अकेलापन, ये यहाँ पे अकेलापन फिजिकल अकेलेपन को केवल नहीं साबित करता है आइसोलेशन। इट्स नॉट ओनली द फिजिकल डिस्टेंसिंग, इट इज द डिस्टेंसिंग और डिटैचमेंट फ्रॉम एवरीथिंग एंड यू फील लोनलीनेस इन योर सेल्फ। वो अकेलापन होता है। जैसे आप यहाँ कॉलेज में आए, जैसे सो याद करिए पहले दिन आए आप कॉलेज में, ठीक, तमाम बच्चे हैं कॉलेज में, लेकिन आपका अपना कोई नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो जो फर्स्ट डे आपको क्या लगा होगा कि कहाँ आ गए, जो है कितना अच्छा चला था हमारा पिछला वाला क्लास, सब कितने अच्छे थे, मिलके खाते पीते थे, लंच करते थे, ठीक है। शुरू शुरू में एक दो दिन चला, तो वो जो अकेलापन महसूस हो उसको आइसोलेशन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ऐसा नहीं कि अकेलेपन मतलब आपको अकेले फेंक दिया गया, जंगल में अकेले पड़े हैं, वो अकेलापन, वो नहीं है। अगर आप जंगल में एंजॉय कर रहे हैं, जंगल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, तो अकेलापन नहीं हुआ। आप अपने अंदर से लोनलीनेस फील कर रहे हैं, मीन्स यू फील योरसेल्फ डिस्ट्रैक्टेड, डिस्ट्रेस्ड, ओके, फ्रॉम एवरीथिंग एंड सफरिंग फ्रॉम लोनलीनेस, देन इट इज कॉल्ड एज आइसोलेशन, ओके। आइसोलेशन भी एक इनका थीम है। जैसे इनकी एक पोएम है टू मार्गरेट करके, टू मार्गरेट। एक्चुअली में ये स्विट्जरलैंड घूमने गए थे, तो वहां पे इनका एक लव अफेयर हो गया मार्गरेट से, लेकिन शादी नहीं हुई। तो उसकी याद में इन्होंने बहुत दुखी होकर के एक पोएम लिखा टू मार्गरेट करके, ठीक है। तो उस पोएम में देखेंगे तो आइसोलेशन की थीम आपको मिलेगी, ठीक है, आइसोलेशन। और कुछ छूट रहा है कोई, देख लीजिए कहीं। अच्छा, एक और है, इसमें लिखा है डाउट एंड कंफ्यूजन, ओके। एक्चुअली इट वाज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ मैथ्यू अर्नल्ड ओनली, इट वाज द प्रॉब्लम ऑफ मोस्ट ऑफ द यूरोपियन पीपल एट दैट टाइम, विक्टोरियन एरा में। क्यों? क्योंकि जो साइंस ग्रो करती जा रही थी, साइंस अपने तर्क दे रही थी, हर चीज को प्रूव करते। साइंस क्या है बेसिकली, ठीक है, विच कैन बी रीप्रूव्ड, ठीक है, प्रूव्ड, रीप्रूव्ड, रीवैल्यूड बाय एक्सपेरिमेंटेशन और बाय द सेम थिंग, ठीक है। उसी को साइंस क्या है कि जिस चीज को फिर से हम एक्सपेरिमेंट द्वारा प्रूव कर सकें, वही साइंस है। यानी साइंस मिलाकर कुल मिला जुला के क्या चीज मांगता है? प्रूफ, ठीक है।
अब यहाँ पे साइंस हर चीज का प्रूफ दे रहा था, लेकिन रिलीजियस पीपल जो थे वो किसी चीज का प्रूफ नहीं दे रहे थे, ठीक है। और धीरे धीरे लोगों का जो विश्वास है या फेथ है रिलीजन के बजाय धीरे धीरे शिफ्ट होकर के साइंस की तरफ बढ़ता चला गया। तो रिलीजन वालों को लगा कि, या जो रिलीजियस टीचर्स थे उनको लगा कि ये तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, इससे तो ह्यूमैनिटी डिसऑर्डर हो जाएगी, फिर क्या किया जाए। वो अपनी कोशिश करते रहे, लेकिन साइंस अपनी कोशिश करता रहा, बढ़ते गए, तो दोनों के बीच में एक वर्चुअल टकराव सा होने लगा, ठीक है। लोग रिजेक्ट करने लगे, जो चर्चेस थे उसको रिजेक्ट करने लगे, जो चर्चेस की बातें थी उसको रिजेक्ट करने लगे लोग। तो एक कियास सोसाइटी में पैदा हो गया, एक डिसऑर्डर सा हो गया, और लोग कंफ्यूज होते गए कि अब मतलब हम माने किसको। साइंस कह रहा है ये चीज सही है, वो रिलीजन कहता है दूसरी चीज सही है, ठीक है। जो कि क्रिश्चियनिटी के में बड़ा एक वो आता है, आप लोग गैलीलियो का नाम सुने ही होंगे, ठीक है। उसने बहुत पहले शायद 17वीं सेंचुरी के आसपास बताया था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ठीक है। लेकिन जो रिलीजियस टेक्स्ट था इनका क्रिश्चियनिटी का, उसमें लिखा था सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाती है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो सेंटर में है, ठीक, जैसे सेंटर है तो सेंटर में अब रिलीजन के अनुसार क्या था, पृथ्वी, रिलीजन के अनुसार पृथ्वी था, ये सूर्य है, ये सूर्य चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक, यानी ऐसे सूर्य चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। लेकिन साइंस, आप लोग जो पढ़े साइंस पढ़े होंगे, ठीक है, तो क्या बताया गया कि सूर्य सेंटर में है और पृथ्वी इसका चक्कर लगाती है, ठीक। अब सोचिए कि साइंस प्रूव कर रहा है इस बात को, रिलीजन कोई प्रमाण नहीं दे रहा है, लेकिन रिलीजियस टेक्स्ट में लिखा हुआ है। अब आपको बोला जाए कि मानिए, तो किसको मानेंगे? साइंस को मानेंगे तो कंफ्यूजन होगा कि नहीं दिमाग में? अब तक बचपन से ये मानते आए, ठीक, ठीक है, मतलब बचपन से पृथ्वी को सूर्य घूम रहा है ये बताता है, और साइंस कह रहा नहीं अब ये है, तो कंफ्यूजन होगा। तो वही जो कंफ्यूजन, आज तो हम लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्यों? क्योंकि हम लोग शुरू से बताया गया, बचपन से पढ़ाया गया सोलर सिस्टम, तो उसमें क्लियर सिखाया गया, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन सोचिए उस व्यक्ति के बारे में जिसको अब तक सिखाया गया बचपन से वो, और तुरंत साइंस प्रूव करके दूसरा चीज बताने लगा, ठीक है। तो गैलीलियो ने जब बताया था, जो चर्चेस था उसकी बात को रिजेक्ट कर दिया और ऊपर से उठा कर उसको जेल में डाल दिया। जेल क्या, नजरबंद कहते हैं उनकी भाषा में, ठीक है। नजरबंद का मतलब है एक बिल्डिंग में डाल दिया गया, ठीक, बाहर नहीं आ सकते आप, ठीक। जैसे मान लीजिए कि उनको एक बड़े से उसमें डाल दिया गया, ऐसे एक कॉलेज है, अब कॉलेज गेट बंद कर दिया गया, बाहर नहीं निकल सकते, पहरेदारी है, लेकिन इसी में आप खेलिए कूदिए खाइए पीजिए जो करना करिए, ये मतलब उसको नजरबंद कहते हैं। तो उसी गैलीलियो की आत्मा से, अब आत्मा पता नहीं जीवित रहती कि नहीं रहती है, ठीक है, रिलीजन तो कहता है कि नहीं भाई आत्मा कभी नहीं मरती है, ठीक है। 1992 या 93 के आसपास पोप ने, मतलब जो चर्चेस का हेड होता है, पोप ने लिखित माफी मांगी कि नहीं गैलीलियो ने जो कहा था वो सही कहा था। फिर उन्होंने अपने टेक्स्ट को चेंज किया, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आए जो साइंस और रिलीजन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिए, और उसका नतीजा ये हुआ कि पब्लिक बहुत कंफ्यूजन में आ गई कि करें क्या, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब एग्जैक्टली जो है साइंस जो कह रहा है वो प्रूव करके दिखा रहा है, रिलीजन प्रूव नहीं कर रहा लेकिन कह रहा मानो। तो ये जो एक उस समग्र सिचुएशन था, सोच के देखिए अपने आप को रख करके कि कंफ्यूजन हो जाएगा दिमाग में, तो इसको भी एक थीम बना करके इन्होंने बहुत सारे पोएम्स लिखे हैं। सो डाउट एंड कंफ्यूजन, ओके। सो आई होप कि इनके जो थीम्स या सब्जेक्ट मैटर क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा बायो देख लेते हैं इनका। अच्छा, जब ये कंफ्यूजन हुआ तो सालों कैसे हुआ था? विक्टोरियन कॉन्फ्लिक्ट कहा गया इसी कंफ्यूजन को। फिर सालों कैसे हुआ? एक टर्म हमने और पढ़ाया था, विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज पढ़ाया था। तो उसमें क्या था? उसमें था कि भाई चर्च से बोल दिया गया कि आपके जितने विद्वान लोग हैं वो आ जाएं, साइंस को कह दिया गया आप लोग आ जाओ। दोनों को बैठ करके समझौता हुआ। समझौता का कंक्लूजन एक लाइन में ये रहा कि पब्लिक को फ्री कर दो, न तो साइंस जबरदस्ती दबाव बनाएगा पब्लिक पे कि तुम साइंस मानो, और ना ही रिलीजन दबाव बनाएगा कि तुम रिलीजन मानो। पब्लिक को फ्री कर दो, उसका मन हो जितने देर के लिए साइंस माने, जितनी देर के लिए रिलीजन माने, चाहे ना माने,
ठीक है, चाहे जैसे माने, चाहे दोनों को माने, चाहे जितना माने, मतलब अब पूरी स्वतंत्रता पब्लिक को हो गई। ठीक है, तब जाके समस्या सॉल्व हुई, और जब ये सॉल्व हुई तो इसको कहा गया विक्टोरियन कंप्रोमाइज। ठीक है, सो विक्टोरियन कॉन्फ्लिक्ट और विक्टोरियन कंप्रोमाइज, ये दो टर्म विक्टोरियन एरा का बहुत फेमस टर्म है, क्वीन विक्टोरिया के समय का। ठीक है, विक्टोरियन कंप्रोमाइज और विक्टोरियन कॉन्फ्लिक्ट। क्लियर? सो लिखिए, चलिए देख लेते हैं इनकी बायोग्राफी मैथ्यू अर्नाल्ड का। सो ही वाज born on 24 December 1822 at Laleham on Thames. Thames is the name of a river. लंदन जिस किनारे बसा हुआ है उस नदी का नाम है टेम्स। ठीक है, स्पेलिंग में TH रहता है, ध्यान रखिएगा, टेम्स। सो टेम्स नदी के किनारे लंदन बसा है, उसी के आसपास कोई जगह है यहाँ पे लेलहम, वहां पे इनका बर्थ हुआ था। ओके, ही डायड ऑन, अब 15 अप्रैल है ना, 15 अप्रैल है। ओके, 15 अप्रैल 1888। ओके, 1888 याद रखिएगा, इसी साल TS इलियट का बर्थ हुआ है, अभी आगे मिलेंगे TS इलियट। ठीक है, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं दूसरे से, TS इलियट। ठीक है, इनका जो डेथ हुआ था बाय हार्ट अटैक, हालांकि तब उस समय नहीं पता था किसी को कि हार्ट अटैक एक बीमारी है, हार्ट फेलियर हो गया। ये काफी घूमते बहुत ज्यादा थे, ट्रेन में घूमते थे बहुत ज्यादा स्पेशली। ठीक है, तो ये, और जो छोटी ट्रेन होती थी उसमें ज्यादा थे। एक ट्राम होता है, ट्राम समझते हैं, ट्राम कार, ट्राम ट्रेन नहीं सुने हैं? कभी कोलकाता जाइएगा तो जरूर देखिएगा, कुछ कंट्रीज में ट्राम ट्रेन चलाई जाती हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा, जो रोड है, जैसे ये रोड है, मान लीजिए आपका ये रोड है, ठीक, ये समझिए ये रोड है आपका, चौड़ा इतना रोड, ठीक, इसके बीच में लोहे की पटरियां डाल दी जाएंगी और इस पर एक ट्रेन चलती रहेगी, उसी पे चलती रहेगी। वो इसलिए किया जाता है बहुत सारे कंट्रीज में कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है छोटी छोटी, जब जैसे कि कानपुर में देख लीजिए ई रिक्शा इतने भरे पड़े हुए हैं, आधी तो रास्ता वही रोक लेते हैं। अगर उनकी जगह एक बड़ी बड़ी बस हो या ट्राम ट्रेन हो तो सारी पब्लिक उसमें भर जाए। ठीक है, और उसका किराया भी सस्ता होता है। कुछ कंट्रीज में तो फ्री भी है, ट्राम ट्रेन में आप बैठिए फ्री ऑफ कास्ट ले जाएगा आपको। ठीक है, सरकार, मतलब वहां की सरकार चलाती है, बहुत सारी कंट्रीज में ऐसे है। तो ये ट्राम ट्रेन में चढ़ने के लिए दौड़ के चढ़े, मतलब चढ़ने जा रहे थे दौड़ करके, वहीं पे उनका हार्ट फेल हुआ और वहीं पे एक्सपायर हो गए। सो व्हाइल ही वाज रनिंग टू कैच अ ट्राम ट्रेन और इक्वल से ट्राम कार, ही फेल डाउन ड्यू टू हार्ट फेलियर एंड डायड देयर। ओके, वैसे जगह का नाम तो लिवरपूल है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं लिवरपूल, लिवरपूल जगह का नाम है। ठीक है, इंग्लैंड में। सो हिज फादर नेम इज Thomas Arnold. Dr. Thomas Arnold. He was professor of history at University of Oxford. Before that, he was headmaster of a school whose name was Rugby. रग्बी फुटबॉल का नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना? रग्बी फुटबॉल, अब पता नहीं उसी के नाम पर बना है किसके नाम पे, बट एक स्कूल था इनके घर के पास में जिसका नाम था रग्बी स्कूल। इस स्कूल के हेडमास्टर थे इनके पिताजी। सो हिज फादर वाज हेडमास्टर ऑफ रग्बी स्कूल। लेटर ऑन ही बिकेम प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री एट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। मतलब इनके पिताजी जो पहले हेडमास्टर थे, बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में, यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के प्रोफेसर बन गए। ठीक है, उसी ऑक्सफोर्ड में बाद में मैथ्यू अर्नोल्ड प्रोफेसर बनते हैं। किस इसका? इंग्लिश का, इंग्लिश का लिखा है तो है जी, हाँ ठीक है, इंग्लिश के प्रोफेसर बनते हैं। ओके, सो हिज फादर वाज ए प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट के बारे में तो हमने बहुत सारे क्लास में डिस्कस किए थे। ठीक है, देन हिज मदर वाज कौन, पेनरोज करके है कोई भाई, हाँ मैरी पेनरोज।
मैरी पेनरोज, ठीक है, मैरी पेनरोज अर्नोल्ड, ओके। सो ही बिलोंग टू अ गुड फैमिली। वैसे 3 भाई थे टोटल, 3 ब्रदर्स ओनली, जिसमें से सेकंड नंबर पे थे मैथ्यू अर्नोल्ड। एजुकेशन वगैरह इनकी बहुत अच्छी रही। स्टार्टिंग एजुकेशन वाज डन एट रग्बी, देन एट ऑक्सफोर्ड इन बेलियल कॉलेज। बेलियल कॉलेज जगह का नाम है, बेलियल, बेलियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड, वहां पे इनकी हायर एजुकेशन होती है, एट बेलियल कॉलेज, बेलियल, इट इज इन ऑक्सफोर्ड। देखो ऑक्सफोर्ड जगह का नाम है, ध्यान रखिएगा, ऑक्सफोर्ड जगह का नाम है, कैम्ब्रिज भी जगह का नाम है। तो जब अभी हम लिटरेचर पढ़ते तो अक्सर कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड आता है, 2 अलग अलग शहर हैं और काफी दूर शहर हैं, ठीक है। ऐसा ना समझना कि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड एक ही जगह है, ऐसा नहीं है, दोनों दूर दूर से है। मैथ्यू अर्नोल्ड का एजुकेशन, स्टार्टिंग एजुकेशन यहाँ पर हुआ रग्बी में, जहां पे इनके पिताजी हेडमास्टर थे, ठीक। बता रहे हैं। रग्बी क्लियर हो गया। यहाँ पे हेडमास्टर थे कौन? इनके पिताजी, यानी थॉमस अर्नोल्ड। बाद में थॉमस अर्नोल्ड प्रोफेसर बन के चले गए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। पिताजी क्लियर। अब आ जाइए इनके एजुकेशन में। इनकी स्टार्टिंग एजुकेशन यहाँ पर हुई रग्बी में, बेसिक एजुकेशन रग्बी में। इसके बाद ये चले गए बेलियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड, ठीक। ऑक्सफोर्ड में काफी टैलेंटेड थे, वहां पर भी पोएम्स वगैरह लिखा, और देन ही रिसीव्ड स्कॉलरशिप, ओपन स्कॉलरशिप देयर, ठीक है। ओपन स्कॉलरशिप उन्होंने यहाँ पे जीती बेलियल कॉलेज में। यहीं पे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब यहाँ पे नोट करिएगा, यहाँ पे एक बंदे से मुलाकात होती है जिस बंदे का नाम है आर्थर ह्यू क्लॉग, ठीक है। उनका यहाँ फ्रेंड मिलता है आर्थर ठीक है, सी है ये, आर्थर ह्यू क्लॉग, ठीक। ये इनका दोस्त होता है। दोस्त कैसे बनता है? जो वहां जाता है, परिचय होता है, तो वो बंदा निकलता है रग्बी स्कूल का स्टूडेंट, ठीक। क्योंकि इनके पिताजी रग्बी स्कूल में हेडमास्टर थे और ये लड़का बहुत होनहार थे, यानी ये आर्थर ह्यू क्लॉग, और इनके पिताजी बहुत फेवरेट स्टूडेंट थे, तो ये इनको जानते थे पहले से ही। वहां जाकर के मुलाकात होती है अच्छे से, और वो एक दूसरे के बहुत क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली इन लेटर लाइफ आर्थर ह्यू क्लॉग की डेथ हो जाती है बहुत जल्द ही, ठीक है। जब डेथ हो जाती है तो इस पे एक एलिजी लिखते हैं या पोएम लिखते हैं, थैरसिस करके एक पोएम है, अभी हम बताएंगे नाम आपको वर्क्स का, थैरसिस। तो वो एलिजी लिखी गई है अपने फ्रेंड के नाम पे, इनके लिए, ठीक है। तो आपके एग्जाम में आएगा मैथ्यू अर्नोल्ड रोट वन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड, नाम आ जाएगा ऑप्शन में, ठीक। एक ध्यान रखिएगा, इससे पहले भी एक और ने लिखा था, कौन लिखा था? हाँ? एक एलिजी और पढ़ी थी आप लोगों ने अभी अभी जस्ट कुछ दिन पहले, हैं? चर्च वाले दोस्त पे लिखा है। अरे अभी तो पढ़ा आपने, ब्रेक 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 दाई कोल्ड ग्रे, आर्थर, हाँ, आर्थर हेनरी हालम किसके फ्रेंड थे? लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन, टेनिसन के फ्रेंड थे, ठीक है। तो आप देखो यही एग्जाम में कंफ्यूजन होता है, एक एमसी को वहां से बन जाएगा, ठीक। मैं आ जाएगा कि मैथ्यू अर्नोल्ड रोट एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड। अब नाम दे देगा दोनों का, आर्थर हालम का भी और आर्थर ह्यू क्लॉग का भी। आर्थर याद रहेगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, आगे ह्यू क्लॉग है कि हेनरी हालम है, ठीक। तो ये एमसीक्यू में ध्यान रखना, ध्यान से, यही सब होता है ट्रिक बनाने का, ठीक है। यही ट्रिक होगा। इनके दोस्त का नाम है ह्यू क्लॉग, उसके नाम का उनके दोस्त का नाम था हेनरी हालम, ठीक है, आर्थर हेनरी हालम टेंसन के। तो ये इन्होंने भी एक एलिजी लिखी है अपने दोस्त के नाम पे, थैरसिस करके बुक है वैसे, ठीक है।
और उनका भी है, ठीक है। इनके पेरेंट्स जो थे, हिज फादर शिफ्टेड टू लेक डिस्ट्रिक्ट इन लेटर लाइफ। इनके जो पेरेंट्स हैं, दे शिफ्टेड टू लेक डिस्ट्रिक्ट, ओके, दे शिफ्टेड टू लेक डिस्ट्रिक्ट। लेक डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने एक हॉलिडे होम ले लिया, घर ले लिया, मतलब छुट्टियों में आके रहने के लिए। जब यहाँ पे रहने लगे, इनकी क्लोज फ्रेंडशिप हो गई किससे? विलियम वर्ड्सवर्थ से। इनका तो नाम सुना ही होगा। इनसे दोस्ती हो गई विलियम वर्ड्सवर्थ से। और 1850 में जब विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ होती है, 1850 याद होगा तो आपको, ठीक, ये लेक के ही डिस्ट्रिक्ट, हाँ लेक डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जगह का नाम है लेक डिस्ट्रिक्ट। विलियम वर्ड्सवर्थ वहीं रहते थे, ठीक है। लेक पोएट्स कौन कौन है? लेक पोएट्स विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट साउदे और एसटी कॉलरिज, ये तीन हैं, ठीक है। इनको लेक पोएट्स कहा जाता है। चलो हम लोग वापस आते हैं। जब इनकी डेथ हो जाती है 1850 में, देन ही रोट वन पोयम, ये क्या नाम है, मैथ्यू आर्नोल्ड वर्सेस, मेमोरियल वर्सेस करके, मेमोरियल वर्सेस, एक बुक लिखा है इन्होंने, मेमोरियल वर्सेस, ठीक है। दिस बुक इज डेडिकेटेड टू विलियम वर्ड्सवर्थ। एग्जाम में ही आएगा, क्योंकि वर्ड्सवर्थ भी आपके सिलेबस में है, मैथ्यू आर्नोल्ड भी सिलेबस में है, तो एमसीक्यू बन जाएगा यहाँ पे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज डेडिकेटेड, या विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज डेडिकेटेड टू विलियम वर्ड्सवर्थ, रिटन बाय मैथ्यू आर्नोल्ड, ठीक है। तो कौन सा होगा? मेमोरियल वर्सेस, ठीक है। थोड़ी सी और एक दो लाइन जोड़ लीजिए। इनकी बुक का नाम फटाफट हम पढ़ देंगे अभी। इनकी मैरिज जो होती है, इनकी एक लवर थी जिसका नाम था मार्गरेट, ठीक है, जिससे शादी नहीं होती है इनकी। इसके बाद इन्होंने एक पोएम लिखी है, उस पोएम का नाम है टू मार्गरेट, ठीक है, टू मार्गरेट करके उस पोएम को। बाद में इनकी शादी हो जाती है जिसका नाम है लूसी, ठीक है, लूसी, फ्रांसिस लूसी नाम है। ये ब्रिटेन के एक जज साहब थे, उनकी बेटी है, ठीक है, फ्रांसिस लूसी। जिसके बाद इनके 6 बच्चे होते हैं और सब है। खैर बच्चे नहीं पूछेगा एग्जाम में, आपको जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे पूछेगा आर्थर ह्यू क्लार्क के बारे में, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, ठीक, ये है। कुछ इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स का नाम सुन लीजिए फटाफट। लाइक इनकी एक फेमस बुक है सोहराब एंड रुस्तम, सोहराब एंड रुस्तम, सुना है कहानी सोहराब एंड रुस्तम की? नहीं सुना? अरे हम लोग थे तो था क्लास में। ओके ठीक है, चलो कोई नहीं। देन स्कॉलर जिप्सी, सोहराब एंड रुस्तम, द स्कॉलर जिप्सी। देन ऑन ट्रांसलेटिंग होमर, कल्चर एंड अनार्की, एसे इन क्रिटिसिज्म, थायरसिस, THYRSIS, यही है पोयम इनके दोस्त के ऊपर लिखा हुआ, ठीक है, थायरसिस। देन डोवर बीच, एक पोयम है जो, हाँ डोवर बीच। इनकी एक क्रिटिकल वर्क है द स्टडी ऑफ पोइट्री, द स्टडी ऑफ पोइट्री। सारा वैसे बुक में दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं वहां से, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी बुक्स इनकी और हैं, जैसे डेमोक्रेसी है, ये सब करके इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट आप में आएगा डोवर बीच आएगा, क्योंकि होता क्या है जब आप 10-15 पोएम पढ़ लेते हैं, एग्जाम के समय जाएंगे तो कौन पोएम किस राइटर ने लिखा भूल जाते हैं। ये याद कब रहेगा? जब आप पूरा उसका इतिहास भूगोल सब समझे रहेंगे कि ये पोएम में क्या है, कौन लिखा होगा, कौन किस साइड किस समय पैदा हुआ, ऐसे करके तब जल्दी याद हो जाएगा आपको, ठीक है।
सो आई थिंक कि बायोग्राफी क्लियर हो गई आज के लिए। कल हम लोग पोएम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पोएम पढ़ेंगे अब। डोबर बीच।